آج ہمارے سامنے جنرل پرویز مشرف کی خود نوشت ان دا لائن آف فائر ہے۔ یہ کتاب صرف ایک شخص کی کہانی نہیں بلکہ پاکستان کی تاریخ کے ایک انتہائی پرآشوب دور کی روداد ہے، اور یہ روداد اس شخص کی زبانی ہے جو اس طوفان کے بالکل مرکز میں تھا۔ جی، اور کتاب کے تعارف میں وہ لکھتے بھی ہیں کہ یہ ان کی سچائی ہے اور وہ قومی سلامتی جیسے حساس معاملات پر بھی کھل کر بات کریں گے۔ بالکل، تو آج ہم اسی کتاب کا گہرائی سے جائزہ لیں گے اور ان کے پیش کیے گئے بیانیے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ بات بھی اہم ہے کہ یہ کتاب اس وقت لکھی جب وہ اقتدار میں تھے، تو یہ صرف یادداشتیں نہیں ہیں، مطلب یہ اپنے فیصلوں کا ایک فعال دفاع بھی ہے۔ ٹائم میگزین نے ان کی نوکری کو دنیا کی سب سے خطرناک نوکری کہا تھا، ہے نا؟ جی ہاں، اور یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ وہ خود اس نوکری کو کیسے دیکھتے تھے۔ صحیح۔ تو ہمارا کام آج اس کتاب میں پیش کیے گئے واقعات اور ان کی توجیہات کو سمجھنا ہے۔ تو پھر شروع وہیں سے کرتے ہیں جہاں سے کتاب شروع ہوتی ہے۔ حصہ اول، آغاز میں۔ یہ ہمیں سیدھا 1947 میں تقسیم ہند کے دوران لے جاتا ہے۔ پہلا ہی باب ہے پاکستان کی ٹرین۔ اس میں ایک 4 سالہ بچے یعنی پرویز مشرف کی یادیں ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ دہلی سے کراچی جا رہے ہیں۔ اور یہ کوئی عام سفر نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ کتاب میں جو منظر کشی ہے وہ بہت خوفناک ہے۔ ٹرین کھچا کھچ بھری ہے، ہر طرف ایک غیر یقینی کی فضا ہے اور راستے میں پٹریوں پر لاشیں پڑی ہیں۔ دیکھیں، یہ صرف ان کی اپنی کہانی نہیں تھی، اس وقت لاکھوں خاندان اسی طرح کے حالات سے گزر رہے تھے۔ کتاب میں یہ ذاتی واقعہ دراصل پاکستان کے قیام کی جو بڑی اور اجتماعی قربانی ہے اس کی علامت بن جاتا ہے۔ صحیح۔ کراچی پہنچ کر ایک بیرک کے 2 کمروں میں 18 افراد کا رہنا، یہ اس نئے ملک کو درپیش ابتدائی چیلنجز کی ایک جیتی جاگتی تصویر ہے۔ یہ وہ بنیاد ہے جس پر مشرف اپنی پوری شناخت استوار کرتے ہیں، ایک مہاجر، ایک پاکستانی اور ایک سروائیور۔ اچھا، اس ابتدائی جدوجہد کے بعد ان کی زندگی میں ایک بالکل ہی الگ ایک نیا موڑ آتا ہے، ترکی۔ جی۔ ان کے والد وہاں پاکستانی سفارت خانے میں تعینات تھے۔ کتاب میں وہ لکھتے ہیں کہ ترکی میں گزارے ہوئے 7 سال ان کی شخصیت کی تعمیر میں فیصلہ کن تھے۔ انہوں نے وہاں زبان سیکھی، دوست بنائے، لیکن کیا اس کے کوئی گہرے اثرات بھی تھے؟ یقیناً۔ ترکی میں ان کا تجربہ صرف زبان سیکھنے یا کھیلنے تک محدود نہیں تھا۔ انہوں نے وہاں ایک ایسی ریاست کا ماڈل دیکھا جہاں فوج کو جدیت اور سیکولرزم کا محافظ سمجھا جاتا ہے، مصطفیٰ کمال اتاترک کی میراث۔ اچھا۔ کتاب میں وہ اسے اپنی شخصیت کی تعمیر کا حصہ بتاتے ہیں، لیکن اگر آپ گہرائی میں دیکھیں تو یہ ان کے پورے سیاسی نظریے کا بلو پرنٹ تھا جسے بعد میں انہوں نے روشن خیال اعتدال پسندی۔ بالکل، روشن خیال اعتدال پسندی کا نام دیا۔ یہ اصطلاح تو ان کے دور میں بہت استعمال ہوئی تھی۔ کیا کتاب میں وہ بتاتے ہیں کہ اس سے ان کی مراد کیا تھی؟ ہاں، وہ اس پر بات کرتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر ایک 2 طرفہ حکمت عملی تھی جو انہوں نے عالمی سطح پر پیش کی۔ ایک طرف وہ مغرب سے کہتے تھے کہ مسلم دنیا کے سیاسی مسائل جیسے فلسطین کو حل کیا جائے تاکہ انتہا پسندی کی جڑیں ختم ہوں، اور دوسری طرف وہ مسلم ممالک پر زور دیتے تھے کہ وہ انتہا پسندی کو مسترد کریں اور تعلیم، سائنس اور سماجی اصلاحات پر توجہ دیں۔ یعنی ترکی کا ماڈل جہاں مذہب اور جدیدیت ساتھ ساتھ چلتے نظر آتے تھے، وہ اس سوچ کی عملی شکل تھی۔ بہت دلچسپ۔ تو ترکی سے واپسی کے بعد وہ واپس کراچی آتے ہیں۔ 13 سال کی عمر میں ناظم آباد کا ماحول ترکی کے منظم ماحول سے تو بہت مختلف ہوگا۔ جی، بہت زیادہ۔ کتاب میں وہ اسے اسٹریٹ سمارٹ بننے کا دور قرار دیتے ہیں۔ گلیوں میں لڑائیاں، پتنگ بازی، یہ ایک فوجی بننے والے لڑکی کی تصویر سے کچھ الگ لگتا ہے نا؟ اور یہی تضاد ان کی شخصیت کو دلچسپ بناتا ہے۔ وہ خود لکھتے ہیں کہ ان کے اندر توانائی بہت زیادہ تھی اور شرارتیں کرنے کا رجحان بھی تھا۔ شاید اسی توانائی کو ایک مثبت رخ دینے کے لیے انہوں نے فوج کا انتخاب کیا۔ تو اس کے بعد وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی یعنی PMA پہنچتے ہیں۔ کتاب میں اس باب کا عنوان ہے کمہار کا چوک۔ یہ ایک بہت طاقتور استعارہ ہے۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ PMA ایک کمہار کی طرح ہے جو پہلے مٹی یعنی کیڈٹ کی شخصیت کو توڑتا ہے، اسے گھونتا ہے اور پھر اسے ایک فوجی کے سانچے میں ڈھالتا ہے۔ یعنی شخصیت کی مکمل تعمیر نو۔ بالکل۔ وہ سینئرز کی طرف سے کی جانے والی شدید ریگنگ کا ذکر کرتے ہیں جس کا مقصد انا کو ختم کرنا اور ایک ٹیم کا حصہ بنانا تھا۔ یہ ایک انتہائی سخت اور کٹھن عمل تھا، لیکن وہ اسے ضروری سمجھتے ہیں۔
किताब में पीएमए का कोई खास वाकया है जो उनकी शख्सियत पर रोशनी डालता हो? हाँ, एक बहुत मशहूर वाकया है। 9 मील की दौड़ के दौरान वो और उनके कुछ दोस्त जीतने के लिए एक शॉर्टकट ले लेते हैं। अच्छा, वो जीत तो जाते हैं, लेकिन बाद में पकड़े जाते हैं और सजा के तौर पर उनकी पोजीशन कई दर्जे गिरा दी जाती है। ये वाकया बहुत अहम है। वो कैसे? ये जाहिर करता है कि उनमें जीतने की शदीद ख्वाहिश थी और वो मकसद हासिल करने के लिए कवायद को तोड़ने या मोड़ने से नहीं हिचकिचाते थे। ये एक पैटर्न है जो हमें बाद में उनके सियासी कैरियर में भी नजर आता है। तो हमने देखा कि उनकी शख्सियत में शुरू से ही एक बागियाना और खतरा मोलने वाला उनसर था। ये बहुत दिलचस्प है कि यही शख्स जो अकेडमी में असूल तोड़ने पर सजा पाता है, आगे चलकर मुल्क का सबसे बड़ा आईनी असूल तोड़कर इख्तिदार में आता है। जी, किताब इस तज़ाद को कैसे बयान करती है, खास तौर पर 1999 की फौजी बगावत के हवाले से? देखें, किताब इस वाक़ये को एक बगावत के तौर पर नहीं, बल्कि मुल्क को बचाने की एक हंगामी कार्रवाई के तौर पर पेश करती है। यानी एक ज़रूरत। जी, हिस्सा सोम, तैयारे के अगवा का ड्रामा पूरी तरह इसी वाक़ये के लिए वक्फ है। मुशर्रफ का बयानिया ये है कि वो श्रीलंका के दौरे से वापस आ रहे थे और इस वक्त के वजीर आज़म नवाज शरीफ ने उन्हें हटाने के लिए उनके तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतरने से रोक दिया था। यहाँ तक कि तैयारे में सिर्फ चंद मिनट का ईंधन बाकी रह गया था। बिल्कुल, किताब के मुताबिक फौज ने उन्हें और दीगर मुसाफिरों को बचाने के लिए एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाला, जिसके नतीजे में हुकूमत का तख्ता उलट गया। तो किताब में इसे ऐसे पेश किया गया है जैसे ये एक हंगामी सूरत हाल का फौरी रद्द-ए-अमल था। लेकिन क्या किताब इस तनकीद पर भी बात करती है कि फौज की तरफ से इख्तिदार पर कब्जे की तैयारियां कारगिल जंग के बाद से ही जारी थीं और ये तैयारे का वाकया महज एक बहाना था? किताब इस तनकीद को बराह रास्त मुखातिब तो नहीं करती, लेकिन वो इस वक्त के सियासी और मुआशी हालात की एक तस्वीर जरूर पेश करती है। उनके मुताबिक मुल्क दिवालिया होने के करीब था, भारत के साथ एटमी धमाकों के बाद कशीदगी उरूज पर थी और सियासी क़यादत नाकाम हो चुकी थी। तो वो अपने इक़दाम को एक नागुज़ीर ज़रूरत के तौर पर पेश करते हैं। बिल्कुल, उनका मौक़िफ़ ये है कि फ़ौज ने मुदाखलत ना की होती तो मुल्क तबाही के दहाने पर पहुंच जाता। तो तैयारे का वाकया इस बयानिए में एक आखिरी तिनका बन जाता है जिसने फ़ौज को हरकत में आने पर मजबूर किया। और फिर उनके इक़्तिदार में आने के सिर्फ 2 साल बाद 9/11 का वाकया पेश आ जाता है। ये पाकिस्तान और पूरी दुनिया के लिए एक नया मोड़ था। किताब का हिस्सा पंजुम, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग, इसी दौर का इहाता करता है। मुशर्रफ लिखते हैं कि इस वाकये ने पाकिस्तान के चैलेंजेस को कई गुना बढ़ा दिया। ये वो मुकाम है जहां उनकी नौकरी वाकई दुनिया की सबसे खतरनाक नौकरी बन जाती है। अच्छा। किताब में वो शदीद दबाव को तफसील से बयान करती हैं जो अमेरिका की तरफ से आया। अमेरिकी नायब वजीर खारजा रिचर्ड आर्मिटेज की मशहूर धमकी का जिक्र है कि या आप हमारे साथ हैं या हमारे खिलाफ। और ये भी कि अगर पाकिस्तान ने साथ ना दिया तो उसे पत्थर के दौर में पहुंचा दिया जाएगा। जी, मुशर्रफ इस फैसले को एक इंतहाई मुश्किल लेकिन सोचा समझा इंतखाब करार देते हैं। यानी इनके पास कोई और नाश्ता नहीं था? किताब में वो इस फैसले का दिफा कैसे करते हैं? वो उसे एक प्रैग्मेटिस्ट यानी हकीकत पसंदाना फैसले के तौर पर पेश करते हैं। उनके मुताबिक इनकार करने का मतलब अमेरिका और आलमी बिरादरी से बराह रास्त टकराव था, जिससे पाकिस्तान के एटमी असासों को खतरा हो सकता था और मुल्क आलमी तन्हाई का शिकार हो जाता। तो हिमायत करने का फैसला उनके मुताबिक पाकिस्तान के कौमी मफाद में था। जी, वो लिखते हैं कि इस फैसले से पाकिस्तान को न सिर्फ मुआशी इमदाद मिली बल्कि वो आलमी सतह पर एक अहम इत्तेहादी के तौर पर उभरा। किताब में वो ये दावा भी करते हैं कि उनकी फोर्सेस ने अल-कायदा के 670 से जायद अरकान को पकड़ा, जिनमें खालिद शेख मोहम्मद जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। लेकिन इस इत्तेहाद की कीमत भी यकीनन बहुत बड़ी थी। मुल्क के अंदर इस फैसले पर शदीद रद्द-ए-अमल आया और मुशर्रफ खुद बराह रास्त निशाने पर आ गए। बिल्कुल, और किताब का दीबाचा यानी प्रोलॉग खास तौर पर सनसनीखेज है। इसका उन्वान ही है दहशतगर्दी से आमना सामना। ये हिस्सा तो बिल्कुल किसी एक्शन फिल्म के सीन की तरह है। इसमें दिसंबर 2003 में उन पर होने वाले 2 कातिलाना हमलों की तफसील है। पहला हमला 14 दिसंबर को रावलपिंडी में एक पुल के नीचे नस्ब बम से किया गया। वो लिखते हैं कि जैसे ही उनकी गाड़ी पुल से गुजरी, एक धमाका हुआ।
जी, और धमाके ने उनकी भारी भरकम मर्सिडीज को जमीन से ऊपर उठा दिया। वो बाल बाल बच गए। ये तो मतलब नाकाबिले यकीन है। इस तरह के तजुर्बे के बाद एक लीडर के तौर पर उनकी सोच में क्या तब्दीली आई? क्या वो ज्यादा मोहतात हो गए या? किताब से तो ये तासुर मिलता है कि वो मजीद पुरअज़्म हो गए। वो इन हमलों को ज़ाती खतरे के तौर पर नहीं देखते, बल्कि इस बात के सबूत के तौर पर पेश करते हैं कि उनकी पॉलिसियां दुरुस्त थीं और वो दहशतगर्दों के लिए एक बड़ा खतरा बन चुके थे। अच्छा, यानी उनके लिए ये हमले उस जंग की कीमत थे जो पाकिस्तान लड़ रहा था। बिल्कुल। और दूसरा हमला तो सिर्फ 11 दिन बाद हुआ, जो इससे भी ज्यादा मोहलक था। तो 25 दिसंबर को उसी जगह के करीब 2 खुदकुश बमबारों ने उनके काफिले को निशाना बनाया। किताब में इसकी खौलनाक तफसीलात हैं। एक धमाका दाईं तरफ से हुआ और दूसरा गाड़ी के बिल्कुल सामने। वो लिखते हैं, हर तरफ जहन्नम का मंजर था, धुआं, मलबा, इंसानी जिस्मों के टुकड़े। इस हमले में 14 अफराद हलाक हुए, लेकिन मुशर्रफ बच गए। जी, उनकी बुख्तरबंद गाड़ी ने उन्हें बचा लिया। इन हमलों की तफसीलात सिर्फ सनसनीखेजी के लिए नहीं है। किताब में मुशर्रफ उन्हें इस बात का जवाज बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि पाकिस्तान वाकई दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के मरकज में था और उनकी क़यादत इस जंग के लिए कितनी ज़रूरी थी। तो खुलासा ये है कि इन द लाइन ऑफ फायर एक मुहाजिर लड़के के ट्रेन में सफ़र से शुरू होती है, जो फौजी एकेडमी के उसूल तोड़ता है, मुल्क का आइन तोड़कर इख्तिदार में आता है और फिर आलमी दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में एक किलीदी किरदार बन जाता है। यानी ये किताब उनके हर मुतनाज़ फैसले का एक जामे दिफा है। ये बिल्कुल दुरुस्त है। ये किताब एक ऐसी जिंदगी की दास्तान है जिसे बड़े फैसलों और तारीखी वाक़यात ने शक्ल दी, बिल्कुल पाकिस्तान की अपनी तारीख की तरह। ये तूफान के मरकज में बैठकर अपने विरसे की वजाहत करने की एक कोशिश है। किताब का हर बाब, हर वाकया उनके इस बयानिए को मजबूत करता है कि उन्होंने जो कुछ भी किया वो पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में था। सही। किताब का इंतिसाब यानी डेडिकेशन भी बहुत दिलचस्प है। मुशर्रफ ने यह किताब पाकिस्तान के अवाम के नाम की है और एक पुरअज़्म और बेलौस क़यादत की उम्मीद जाहिर की है। और यहीं से हमारे सामईन के लिए सोचने का एक नुक्ता निकलता है। मुशर्रफ ने क़यादत का जो मॉडल अपनी किताब में पेश किया है, एक हकीकत पसंद, खतरा मोल लेने वाला और बाज़ औक़ात उसूलों को नज़रअंदाज करने वाला रहनुमा। इस किताब में बयान करदा वाक़यात की रोशनी में ये कहानी पाकिस्तान जैसे पेचीदा मुल्क में क़यादत की नौइयत और इसके चैलेंजेस के बारे में हमें क्या सिखाती है?